Hi everyone, a very warm welcome to each one of you in this very interesting and very informative session that we are going to conduct today. Mandir. Mandir matlab temples. You must have heard about temples. You must have visited temples. But do you know what is the actual significance of a temple? Why, whenever we are feeling bit anxious, restless, we march on towards the temples? And why do we feel a sense of calm, sense of relief when we are inside a temple? There are many reasons behind it. आप कुछ reasons accept करोगे, कुछ में भी ना करो. But based on my own personal experiences, I know that temple is a place where we are not scared of getting judged. है ना? Temples are a place which are spiritually charged through mantras, through chanting, through hymns, through various pujas, rituals which are performed. For example, recently I visited Kashi Vishwanath temple. Now, in that temple complex itself, in that corridor itself, I felt a sense of relief. Finally, there is no anxiety, no restlessness in my mind. Why? Because temples are the place, or we can say temples are the living embodiment of the universe's spiritual energy. The idols which are kept inside the temple, they undergo a process of pran pratishtha, which we also saw in the Ram Ayodhya Mandir. है ना? हमने देखा था ना, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट हुआ था. तो ये प्राण प्रतिष्ठा मतलब क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा मीन्स द सेम प्राण और द ब्रीदिंग एनर्जी, द लिविंग एनर्जी इनसाइड योर बॉडी, बिकॉज ऑफ विच यू आर एबल टू सी, speak, hear, taste, smell, etc. The same living force is invoked in the idol which is kept inside the temple, in the sanctum sanctorum or the garbhagriha of the temple. And that is why temples are considered as the body of the idol. The idol is the soul of the temple. जो अंदर मूर्ति रखी जाती है वो आत्मा मानी जाती है एक मंदिर की, और मंदिर को माना जाता है उस मूर्ति का शरीर. इसीलिए जब भी हम मंदिर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हम स्टेयर्स को माथे से इस तरीके से लगाते हैं. अब बात आती है कि आज के सेशन में मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज का सेशन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वी आर गोइंग टू गो थ्रू द 5 temples which were attacked by the Mughals, which were invaded, which were damaged, destroyed by the invaders. कल जो टेम्पल है वो हमारे कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. Temples are the you can say embodiment of our diverse culture, of India's rich heritage. They are the roots of India's culture. And जब आप उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हो, that means you are trying to damage the culture, the roots of our very culture. तो ऐसे 5 टेम्पल्स हैं जिनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम समझेंगे, बिकॉज एज एन इंडियन वी शुड नो अबाउट द रूट्स ऑफ आवर कल्चर. है ना? शुरू करें आज का सेशन. आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि स्पिरिचुअली एक मंदिर कितना ज़रूरी है, साइकोलॉजिकली एक मंदिर कितना ज़रूरी है. चाहे लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज आए, जब आप मंदिर के अंदर स्टेप इन करते हो, ऑटोमेटिकली आपके सारे प्रॉब्लम, सारी ओवर थिंकिंग अपने आप कम होती चली जाती है, बिकॉज टेम्पल्स आर द इम्बॉडीमेंट ऑफ फेथ एंड होप एज वेल. चलिए शुरू करते हैं. जब हम बात करते हैं 5 टेम्पल्स अटैक्ड बाय मुगल्स, वैसे तो काफ़ी टेम्पल्स हैं जिनको मुगल्स ने अटैक किया था, बट द पॉइंट इज कि ये 5 टेम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, न्यूज़ में रहते हैं, करंट अफेयर्स का बहुत ही मेजर पार्ट है. एंड दैट इज़ वाई आपके आने वाले यूपीएससी एग्जामिनेशंस के लिए भी ये टेम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, including the Kashi Vishwanath temple. Recently, the Gyanvapi mosque was also in news, right? और वहाँ पर ज्ञानवापी मॉस्क में आपने देखा होगा कि अभी कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू वहाँ पर पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है, राइट? Hindus have been given the permission to attend the rituals, Hindu rituals in the ज्ञानवापी मॉस्क. अब ये सारा इशू क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, ये धीरे धीरे हम इस सेशन में पढ़ेंगे. ये सेशन ना सिर्फ आपके यूपीएससी के एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं टू इंक्रीज द अवेयरनेस, टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द मासेस. शुरू करते हैं. दीज आर द 5 टॉप टेम्पल्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर सिचुएटेड है. खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, हम्पी,
नालंदा यूनिवर्सिटी एंड सोमनाथ टेम्पल। यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी ज्ञान का मंदिर है। मैं आपको बताऊंगी इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी। एक मैप मैंने तैयार किया है जहां पर मैंने इन सभी टेम्पल्स की लोकेशन को मार्क कर दिया है। इससे क्या होता है कि विजुअली यू विल बी प्रिपेयर्ड व्हेनेवर समबडी आस्क्स यू वेयर दिस पर्टिकुलर टेम्पल इज लोकेटेड। फॉर एग्जाम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। Kashi Vishwanath temple, abhi recently I visited this temple on New Year's. I was very fortunate enough to get a call from Kashi Vishwanath. The point is कि इस तरीके की जो स्पिरिचुअली चार्ज्ड मंदिर हैं, इनका जब डिस्ट्रक्शन या इनको जब अटैक किया जाता है, इट अटैक्स द रूट ऑफ आवर सोल एज वेल। वी विल अंडरस्टैंड हाउ। ये है हमारा प्यारा सा सुंदर सा काशी विश्वनाथ मंदिर। जब हम इस मंदिर की बात करते हैं, हमें पता है कि ये मंदिर गंगा घाट किनारे सिचुएटेड है और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग, महादेव का ज्योतिर्लिंग फॉर्म में यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा है। यहाँ पर महादेव प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं बोलेंगे, कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक बीम ऑफ लाइट है जो ओरिजिनेट हुआ था, ना जिसका आदि है ना अंत है, और उनमें से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर सिचुएटेड है। ये मंदिर विश्वनाथ, इट इज रिलेटेड टू, इट इज डेडिकेटेड टू विश्वनाथ, विश्व के नाथ, यानी कि पूरे विश्व के स्वामी, द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज महादेव। क्या आपको एक स्पेसिफिक बात पता है इस मंदिर के बारे में कि वाराणसी में कोई ये नहीं बोलता हर हर महादेव, हर कोई यही बोलता है ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो यहाँ पर माँ पार्वती और भोले बाबा यानी कि महादेव दोनों ही विराजमान हैं। अब ये मंदिर उत्तर प्रदेश में वाराणसी में सिचुएटेड है और ये टेम्पल एक पिलग्रिमेज साइट भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर साल, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, चाहे न्यू ईयर हो या नॉर्मल कोई भी समय हो साल का, यहाँ पर मंदिर में भीड़ भक्तों की लगी रहती है। I personally experienced that the devotees they stand in a they form a queue starting from 3:30 a.m. in the morning। इतनी लंबी लाइन लगी होती है यहाँ पर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। और इस श्राइन को, इस मंदिर को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि विश्वेश्वरा मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथा मंदिर, जिसका मतलब यही है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। अब जब इस मंदिर की बात करेंगे, किस रिलीजियस सेक्ट से ये मंदिर सिचुएटेड है, जुड़ा हुआ है, इट इज रिलेटेड टू हिंदुइज्म। एंड यहाँ पर जो डेटी विराजमान है, जो शिवलिंग विराजमान है, उसको विश्वेश्वरा या विश्वनाथ भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर में जो भी इसके रिचुअल्स, वट एवर प्लानिंग्स एंड वट एवर मेंटेनेंस रिलेटेड वर्क आर डन, द क्राउड मैनेजमेंट एटसेट्रा, इट इज डन बाय द श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट। एक ट्रस्ट बनाया गया है जो कि इस टेम्पल की देखरेख करते हैं, इस मंदिर के मैनेजमेंट को संभालते हैं। अब ये जो टेम्पल है, ये टेम्पल किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना है ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में आपको देखोगे, इसीलिए इसका नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। कहा जाता है कि इसको 1585 में इस टेम्पल को, मैं यहाँ पर अलग से भी लिख देती हूँ पॉइंट बना के, 1585 में इस टेम्पल का निर्माण करने की कोशिश की गई राजा मान सिंह वन के द्वारा। और उसके बाद यहाँ पर राजा तोदरमल ने भी इस टेम्पल को मेंटेन किया और यहाँ पर काफी श्राइन्स हैं, अलग अलग गर्भगृह हैं जो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाए गए। एंड फाइनली जब इस टेम्पल को काफी इन्वेडर्स ने डिस्ट्रक्ट करने की, डैमेज करने की कोशिश की, तो 1780 में इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया बाय महारानी अहिल्याबाई होलकर। मेरे पास काफ़ी सारी इमेजेस हैं जो मैं टेलीग्राम पर भी आपके साथ शेयर करूंगी। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को, कॉरिडोर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट हमारी गवर्नमेंट ने करवाया है और यहाँ पर महारानी अहिल्याबाई होलकर का एक बहुत ही बड़ा स्टैचू भी स्टैब्लिश कराया गया है। तो इस टेम्पल का आप बोल सकते हो फाइनल जो रिकंस्ट्रक्शन था वो 1780 में इट वॉज डन बाय महारानी अहिल्याबाई होलकर। अब कहा जाता है कि दिस टेम्पल वॉज अगेन एंड अगेन अटैक्ड। First, it was attacked in 1194 by Muhammad of Ghori. Then, between 1505 to 1515, Sikandar Lodi also tried to attack this temple. And 1669 में तो हम सभी जानते हैं that औरंगजेब also demolished this temple. और हमने देखा कि ज्ञानवापी मॉस्क भी वही साइड में टेम्पल कॉम्प्लेक्स कॉरिडोर के साइड में बनाया गया है। आज भी अगर इफ यू विजिट द टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, यू कैन सी क्लियरली द ज्ञानवापी मॉस्क। टेम्पल कॉरिडोर के अंदर ही से ही आपको दिखेगा ज्ञानवापी मॉस्क। आई माई सेल्फ पर्सनली सॉ द मॉस्क।
और वहां पर एक फेंसिंग हो रखी है, देयर इज अ फेंसिंग। आई शो यू द इमेज, अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, मैं आपको इमेज दिखाती हूँ। ये मैंने इमेज क्लिक करी है, दिस इज द इमेज दैट वाज क्लिक्ड बाय मी। सो दिस इज द ज्ञान वापी मॉस्क विच यू कैन सी, एंड दीज आर द फेंसेस। ये आप देखोगे ये फेंसिंग की हुई है, ठीक है। फ्रॉम हियर पीपल आर अलाउड टू टेक द पिक्चर्स, बट आगे जाकर पिक्चर्स लेना मना होता है। तो यहां से हम देखेंगे कि दिस वाज सीन इन फ्रॉम इनसाइड द टेंपल कॉरिडोर, अंदर से ही आप देख सकते हो फेंसेस के द्वारा, उस साइड फेंसेस के वी हैव द ज्ञानवापी मॉस्क। हम इसके ऊपर भी आएंगे, डोंट यू वरी एट ऑल, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट काशी विश्वनाथ टेम्पल विच इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन टेम्पल, क्योंकि इसका पूरा जो टॉप है, ठीक है, एलिवेशन है, वो गोल्ड का है। इट इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर गंगा। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर सिचुएटेड है। एंड यहाँ के कोतवाल हैं बाबा भैरव। कहा जाता है कि बिना भैरव बाबा के दर्शन के आपकी काशी की जो विजिट है वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो वहाँ के प्रोटेक्टर माने जाते हैं। तो इसीलिए काशी विश्वनाथ टेम्पल जाने से पहले जब हम वहाँ पहुंचे थे, तो हमें सब ने यही एडवाइस दिया था कि आप बाबा भैरव के पहले दर्शन कीजिए, फिर उसके बाद आप काशी विश्वनाथ टेम्पल जाइएगा। तो बेसिकली इट इज सेड कि यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ बाबा भैरव, देन यू हैव टू एंटर द काशी विश्वनाथ टेम्पल। हमने ऐसा ही किया था, एंड इट वाज अ वेरी सरियल, वेरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दैट वी हैड देयर। Now this temple had been demolished. Basically many people tried to demolish, damage this temple several times. आप जो टाइमलाइन देख रहे हो ना, इस टाइमलाइन को अगर आप देखोगे, कि इस टाइमलाइन के थ्रू हम समझने वाले हैं कि हाउ दिस टेम्पल वाज अटैक्ड, देन अगेन रिकंस्ट्रक्टेड, देन अटैक्ड, देन रिकंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पर इस टेम्पल को अभी रिसेंटली इट वाज अटैक्ड इन 1860। अब आप यहाँ देखोगे रिसेंटली 1860 में इसको अटैक किया, नॉट 1860, यहाँ पर रिसेंटली आप देखेंगे कि इट वाज अटैक्ड इन 1669, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये रीसेंट अटैक का टाइम पीरियड है, जहां पर औरंगजेब ने अपने आर्मी जनरल को भेजकर इस टेम्पल पर अटैक करवाया था। एंड देन इट वाज रिकंस्ट्रक्टेड इन 1780 बाय महारानी अहिल्याबाई होलकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। जब औरंगजेब ने इस टेम्पल पर अटैक करवाया था 1669 में, उन्होंने एडजेसेंट टू दिस टेम्पल ज्ञानवापी मॉस्क को भी स्टैब्लिश करवाया था। ओके, दिस वाज आल्सो स्टैब्लिश। और ये भी बात जाननी बहुत जरूरी है कि अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी थी। आखिर क्यों इन्होंने इस टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट करवाया? क्योंकि ऐसा बहुत फेमस है, इट इज वेरी फेमस दैट अहिल्याबाई होलकर वाज वन ऑफ द वेरी डीप डिवोटी ऑफ महादेव। After she lost her husband, her sons, and also her father-in-law, she became absolutely spiritual। वैसे तो पहले से भी काफी स्पिरिचुअल थी, बट जब उन्होंने अपने खुद के हस्बैंड, अपने ससुर, अपने बच्चों को खो दिया, तो वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी की तरफ चली गई थी। एंड इट वॉज अ स्ट्रिक्ट पॉइंट इन हर किंगडम कि एवरी डे व्हेन शी वेक्स अप, शी यूज्ड टू गो टू द शिवा टेम्पल टू डू जल अभिषेकम। एंड शी ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड मल्टीपल टेम्पल्स ऑफ महादेव इन इंदौर। काफी टेम्पल्स उन्होंने अपने ही किंगडम में स्टैब्लिश कराए थे। एंड शी टुक इट ऑन हरसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट एंड मैनेज द काशी विश्वनाथ टेम्पल, बिकॉज ये तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है ना। तो ये काफी स्पिरिचुअली चार्ज्ड मंदिर था। अब यहाँ पर सिंस 1983, अगर हम 1983 की बात करें, 1983 से इस टेम्पल को एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मैनेज करते हैं। द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैव बीन फॉर्म्ड टू मैनेज दिस पर्टिकुलर टेम्पल। और इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को किसने स्टैब्लिश कराया है? यूपी गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश करवाया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हर दिन 45 to 50,000 डिवोटीज विजिट दिस टेम्पल। बहुत बड़ा नंबर है। मैंने पर्सनली इस टेम्पल के आगे मैनेजमेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स देखे हैं। Heaps of police vans, police jeeps, all over the temple complex आप देखोगे there are policemen all over. Security इतनी tight है because there are the footfall of the devotees is very high. तो manage करने के लिए plus ज्ञानवापी मॉस्क is also situated nearby. तो ये बहुत ही important होता है कि यहाँ पर security उतनी ही कड़ी रखी जाए, है ना। अब लेजेंड की बात करते हैं। यहाँ पर बोला जाता है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल में पहला ज्योतिर्लिंग जो है वो अपने आप मैनिफेस्ट हुआ था। इट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि कुछ ज्योतिर्लिंग बनाया गया है, इट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ, द फर्स्ट ज्योतिर्लिंग। एंड अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, इट वाज एट दिस प्लेस दैट शिवा मैनिफेस्टेड द इनफाइनाइट कॉलम ऑफ लाइट। आपने वो कहानी तो सुनी होगी जहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कहा गया कि आप इस बीम ऑफ लाइट के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को ढूंढ लीजिए, जिसने ढूंढ लिया वही सुप्रीम गॉड हो जाएगा। एंड लॉर्ड ब्रह्मा ही लाइट कि मुझे इसका स्टार्टिंग मिल गई है।
एंड विष्णु जी ने बोल दिया कि मुझे इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है, सो दैट मीन्स दिस सुप्रीम बीम ऑफ लाइट इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दिस इज द स्पाइन ऑफ द यूनिवर्स। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ये मंदिर जो है, वाराणसी जो प्लेस है, यहाँ पर मणिकर्णिका घाट भी देखा जाता है। अगर आप देखें इस इमेज में, तो मणिकर्णिका घाट यही गेट नंबर 4 जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल का, उसी के बहुत ही करीब में मणिकर्णिका घाट सिचुएटेड है। मणिकर्णिका घाट टेम्पल से थोड़ा सा पहले ही आता है। मैं वहां पर 2 3 बार गई थी। टेम्पल से ज्यादा दूर नहीं है, जस्ट थोड़ा सा आधा किलोमीटर पहले ही पड़ता है। तो यहाँ पर मणिकर्णिका घाट में कहा जाता है ये मोक्ष का घाट है, वहाँ मोक्षदायिनी गंगा बहती है। मोक्ष का घाट मतलब यहाँ पर जो भी अपने आत्मा को, अपनी बॉडी को छोड़कर जाता है, उस आत्मा को यहाँ पर सीधा मोक्ष मिलता है। देर इज नो अदर लूप ऑफ डेथ एंड बर्थ दैट दी आत्मा और द सोल एंटर्स इनटू एट मणिकर्णिका घाट। सो अगेन वेरी स्पिरिचुअली यू कैन से चार्ज्ड प्लेस। अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि ये पूरा जो टेम्पल का सिलसिला चला है, ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ, हमें कैसे पता है कि यहाँ पर औरंगजेब ने ही अटैक किया था। सो देर इज अ पर्शियन टेक्स्ट विच यू शुड नो अबाउट फॉर प्रिलिम्स ऑल्सो। देर इज अ पर्शियन टेक्स्ट विच इज नोन एज मासीर ए अलामगिरी। ये है पर्शियन टेक्स्ट मासीर ए अलामगिरी। अब इसको औरंगजेब के डेथ के बाद लिखा गया था। इट वॉज रिटन पोस्ट औरंगजेब्स डेथ, और बिल्कुल इमीडिएटली आफ्टर औरंगजेब्स डेथ, ठीक है, औरंगजेब्स डेथ इट वाज रिटन, एंड इट वाज रिटन इन 1707। इसी टाइम के अराउंड औरंगजेब आल्सो डाइड। नाउ हियर इट हैज बीन रिटन इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट दैट औरंगजेब ऑर्डर्ड हिज आर्मीज, हिज गवर्नर्स, कि भारत में जितने भी टेम्पल्स हैं सबको डैमेज किया जाए, सबको डिस्ट्रॉय किया जाए। And this included the grazing of Kashi Vishwanath temple as well. So this text talks about it, which was written in 1707, that it was announced in 1669 by Aurangzeb to destroy and damage all the Hindu temples across India. एंड हमें पता है हाउ टॉलरेंट ही वॉज, औरंगजेब कितने टॉलरेंट थे हमको भी पता है विद रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन्स। एंड ज्ञानवापी मॉक्स, जब हम ज्ञानवापी मॉस्क की बात करते हैं, ये 1670s या 1680s में कंस्ट्रक्ट करवाया गया, ठीक है, और बिल्कुल विश्वनाथ मंदिर के डैमेज्ड वॉल के एडजेसेंट इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया। दिस वॉज बिल्ट ऑन द रूइंस ऑफ द ओल्ड विश्वनाथ टेम्पल, और अगर आप देखें तो ये आज भी विजिबल है। दिस इज टुडे इटसेल्फ इट इज विजिबल। ओके, नाउ ये है हमारा अभी न्यू जो कंस्ट्रक्ट करवाया गया है, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। नाउ आप देखेंगे दिस इज नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नागर स्टाइल में क्या होता है, जो श्राइन होता है उसके जस्ट नीचे गर्भगृह होता है। तो ये जो श्राइन आप देख रहे हैं ना, इसी के जस्ट नीचे शिवलिंग भी रखा गया है। यहाँ पर पूजा होती है, जल अभिषेक होता है। देयर इज अ पाइप जहां पर आप दूध डालेंगे तो वो सीधा शिवलिंग के ऊपर जाएगा। सो अगेन वी हैड अ वेरी ब्यूटीफुल दर्शन ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल। अब चलिए बात कर लेते हैं ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में कि क्या रिसेंट रिपोर्ट्स निकल कर आई है। लेट अस अंडरस्टैंड। जब हम ज्ञानवापी मॉस्क की बात करते हैं, यहाँ पर देयर इज अ रीसेंट ASI सर्वे विच हैज रिसरफेस्ड। अब हमें पता है कि 2022 मई 12 की बात है, जब वाराणसी कोर्ट ने, वाराणसी का जो कोर्ट है, उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया ऑन द ज्ञानवापी मॉस्क। द जजमेंट केम ऑन द ज्ञानवापी मॉस्क। जजमेंट क्या था? दिस जजमेंट बेसिकली refused to remove advocate commissioner अजय कुमार मिश्रा। अजय कुमार मिश्रा को इस मॉस्क को सर्वे करने के लिए अपॉइंट किया गया था, एंड फाइनली एक हिस्टोरिक जजमेंट निकल कर आई 2022 में कि इनको रिमूव किया जाए, ठीक है। और किस चीज का सर्वे कर रहे थे ये? ही वॉज सर्वेइंग द बेसमेंट ऑफ द मॉस्क। अब तो फाइनली इट हैज बीन ओपनड अप फॉर हिंदू रिचुअलिस्टिक वर्शिप, है ना। तो कहा जाता है कि ये जो ज्ञानवापी मॉस्क है ना, ये रहा, ठीक है, दिस ज्ञानवापी मॉस्क बेसिकली ये यासिर अलामगिरी की किताब में पाया जाता है। इट हैज बीन रिटन इन यासिम अलामगिरीज बुक दैट 1669 में इट वॉज ऑर्डर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पर ये जो हम किताब का नाम लिख रहे हैं ना, मासिर अलामगिरी, इट हैज बीन रिटन बाय द पर्शियन राइटर यासिर अलामगिरी। सो ही रोट इट डाउन ओवर हियर कि दिस मॉस्क वॉज कंस्ट्रक्टेड एडजेसेंट टू द टेम्पल एंड टेम्पल वॉज ऑर्डर्ड टू बी डिमोलिश्ड। अब बात क्या आती है यहाँ पर? बात ये आती है कि यहाँ पर सेक्शन 3
ऑफ, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पर मॉस्क है, ये मस्जिद बहुत सालों से सिचुएटेड है, एंड दैट इज वाई दी मुस्लिम्स आर ऑल्सो वर्शिपिंग ओवर हियर, वो भी यहाँ पर आते हैं। तो काफी 16, आप जस्ट इमेजिन 1680s में भी अगर ये मॉस्क बना है, तब से लेकर अब तक सो मेनी ईयर्स हैव पास्ड। So now if you are trying to remove the mosque, so Muslim community is also fighting over it, but it was built on the ruins of Vishwanath temple, so the Hindi community is also saying ki that it has been proved यहाँ पर पहले हमारा मंदिर हुआ करता, तो यहाँ पर शिव जी की पूजा शुरू हो जानी चाहिए। सो हियर सेक्शन 3 कम्स इनटू एक्शन, सेक्शन 3 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ओके, तो इट इज प्रोहिबिटेड अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, यहां पर मैं लिख देती हूं, इट इज प्रोहिबिटेड टू कन्वर्ट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, into a place of worship of different religious denomination। एक जगह जहां पर बहुत सालों से किसी भगवान की या किसी मुस्लिम कम्युनिटी या किसी भी और रिलीजियस कम्युनिटी की पूजा चल रही है, सेक्शन 3 बोलता है कि आप उसको किसी और रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट अगेन द हिंदू कम्युनिटी सेज बट दिस प्लेस वाज बिल्ट ऑन आवर टेम्पल, तो अगेन वी आर जस्ट रीडिमांडिंग आवर राइट्स। अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है प्रूफ करने की, व्हाट इज द प्रूफ? ठीक है, वी हैव सीन दैट यासिर अलामगिरी रोट अबाउट इट, बट एक्चुअल फैक्चुअल प्रूफ्स भी तो होने चाहिए ना, जो हमें दिखे, जो विजिबल हो। तो यहाँ पर ASI सर्वे वाज डन, एंड this is again very important. The ASI survey was done using a very separate and different and new model. The model was the GPR model. GPR मॉडल क्या है? ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार सर्वे, जहां पर एक्चुअली टच करके आप एक्सकवेट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट फिजिकली एक्सकवेटिंग द प्लेस, बट यू आर यूजिंग शॉक वेव्स एंड रेडार इंपल्सेस टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, द एंशिएंट स्टोरी, द ईयर ऑफ ओरिजिन ऑफ द मटीरियल्स। तो यहां पर पाया गया यूजिंग द ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार द रूइंस ऑफ हिंदू टेम्पल, हिंदू स्कल्पचर्स, इमेजेस हैव बीन फाउंड। ऐसे कुछ मंदिर, ऐसे कुछ मूर्तियां पाई गई हैं। सम इंस्क्रिप्शंस हैव आल्सो बीन फाउंड। देखो इस पैराग्राफ में, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। द अरेबिक पर्शियन इंस्क्रिप्शन वाज फाउंड इनसाइड अ रूम व्हिच मेंशंस दैट द मॉस्क वाज बिल्ट इन 1676 to 77। ओके, तो अगेन दिस हैज बीन प्रूव्ड फाइनली, एंड दैट इज व्हाई द बेसमेंट, जो बेसमेंट वाला एरिया है ज्ञानवापी मॉस्क का, उसको फाइनली ओपन कर दिया गया है फॉर हिंदू रिचुअलिस्टिक वर्शिप। ओके, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। इन द ज्ञानवापी मॉस्क यू विल सी दिस नंदी बुल, राइट, which is exactly in the direction facing towards the Jyotirling situated in the Kashi Vishwanath temple, and it is said that a Nandi always faces his Isht, दैट इज महादेव। नंदी हमेशा इंतजार में लगे रहते हैं कि कब महादेव अपनी साधना से ध्यान से उठेंगे, इसलिए एक टक बैठकर नंदी महादेव की तरफ देखते रहते हैं। और इस टेम्पल में जो आप देखेंगे नंदी की प्रतिमा जो सिचुएटेड है, विच वॉज गिफ्टेड बाय राणा ऑफ नेपाल, इट इज केप्ट इन द सेम डायरेक्शन, द नंदी इज लुकिंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द ज्योतिर्लिंग। 1860 में आप देखेंगे ये एक फुट हाई स्टोन स्टैचू नंदी का, नंदी बुल का गिफ्ट किया गया था। तो दिस इज अगेन अ प्रूफ, राइट, कि यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा कॉलम जो है, ये आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल का ही पार्ट था। तो आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, राइट। काशी विश्वनाथ टेम्पल की सारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने समझा। वी अंडरस्टूड द रेलेवेंस ऑफ द स्पिरिचुअली चार्ज प्लेस एंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोमनाथ टेम्पल के बारे में। जब हम सोमनाथ टेम्पल की बात करते हैं, सोमनाथ, अगेन दिस इज अ नेम विच इज गिवन टू लॉर्ड महादेव। आप देखेंगे महादेव के सर पर चंद्र है, चंद्र को सोम भी बोला जाता है, राइट। तो सोमनाथ, चंद्र को धारण करने वाले, सौम्य, सबसे सुंदर महादेव। तो जब हम बात करते हैं सोमनाथ टेम्पल की, अगेन सोमनाथ टेम्पल भी ज्योतिर्लिंग का ही एक पार्ट है। It is one of the 12 ज्योतिर्लिंगास in our nation. And जब हम बात करते हैं इन्वेडर्स की, अटैकर्स की, they have always targeted such spiritually charged temples, places. So again when we talk about this very magnificent Somnath temple, इसके ऊपर PYQs में क्वेश्चन आ चुका है। There have been twice or thrice there have been instances when the questions have been asked on Somnath temple, on Kashi Vishwanath temple. But recently there was a very important question on Somnath temple and that question is on your computer screens. अब देखते हैं आप में से कितने बच्चे इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क करते हैं। The question is very direct.
Prime Minister recently inaugurated the new circuit house near the Somnath temple at Veraval. Which of the following statements are correct regarding the Somnath temple? Somnath temple is one of the Jyotirling shrines. Second, a description of Somnath temple was given by Al Biruni. And third, the Pran Pratishtha. I have explained to you what is the meaning of Pran Pratishtha, right? Pran Pratishtha of Somnath temple was done by President S. Radhakrishnan. अब आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. बहुत ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़िएगा एंड देन टेल मी. आई रिमेंबर आई गेस इन 2017 दिस क्वेश्चन केम इन पीवाईक्यूज, जितना मुझे याद है, गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा. 2017 में एज फार एज माई मेमोरी गोज दिस क्वेश्चन केम. देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क करते हैं. लेट्स सी. ऑल द इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंगास इन न्यूज. नाउ द ज्ञानवापी मॉस्क एंड काशी विश्वनाथ टेम्पल इज इन न्यूज, सो यू हैव टू प्रिपेयर दोज टू लोकेशंस. उन लोकेशंस को, उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को इस सेशन से जरूर प्रिपेयर कीजिएगा. ठीक है. So again, the correct answer in this particular case is C. If you look at third statement, it is saying that the Pran Pratishtha was done by President S. Radhakrishna. तो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे वो आपके थे राजेंद्र प्रसाद, श्री राजेंद्र प्रसाद. He was the then president. So he did the Pran Pratishtha. It was done on 11th of May 1951. थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. जब थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बी कैन बी एलिमिनेटेड, सी एंड डी कैन ऑल्सो बी एलिमिनेटेड. सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज, यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट. स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल ही करेक्ट है. अब जब हम बात करते हैं स्टेटमेंट 1 एंड 2 की, यहां पर आप देखोगे सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड कहां पर है. इट इज लोकेटेड ऑन द अरेबियन शोर और द शोर ऑफ अरेबियन ओशन, यू कैन से. ठीक है. कहां पर लोकेटेड है? गुजरात सब कॉन्टिनेंट में ये लोकेटेड है. वेरावल इज सोमनाथ ओनली. वेरावल को सोमनाथ कहा जाता है. और ऐसा कहा जाता है कि इस टेम्पल का जो नाम है ना, सोमनाथ टेम्पल, वो एक्चुअली में एंशिएंट संस्कृत स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा गया है. एंड एंशिएंट संस्कृत स्क्रिप्चर्स में इट इज नोन एज प्रभास पतन. इट इज मेंशन्ड इन दी वन पर्व चैप्टर ऑफ महाभारता. आई एक्सप्लेन दिस टू यू. इसके पीछे क्या जो हिस्टोरिकल स्टोरी है वो मैं जरूर बताऊंगी, डोंट वरी. अब जब हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर वाज एन अरब ट्रैवलर, और उस अरब ट्रैवलर का नाम था अल बुरूनी. ही रोट इन हिज ट्रैवल मोनोलॉग, अपनी किताब में इन्होंने लिखा था दैट महमूद ऑफ गजनी, और यू कैन कॉल हिम महमूद गजनी, ही अटैक्ड द सोमनाथ टेम्पल इन 1024. इस ईयर में टेम्पल पे अटैक हुआ था. कहा जाता है 17 बार इस मंदिर को डैमेज करने की, डिस्ट्रक्ट करने की, खत्म करने की कोशिश की गई महमूद ऑफ गजनी के द्वारा. और यहां तक कहानी खत्म नहीं हो जाती है. उलूग खान, औरंगजेब, मुजफ्फर शाह वन, ये सारे जो आप देखेंगे राजा रहे हैं, ये सब मुगल रूलर्स, दे हैव, यू कैन से कि दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन और डैमेज बिहाइंड द सोमनाथ टेम्पल. तो इसको भी अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल में. तो मेरे साथ स्टोरी में लगे रहिएगा टिल दी वेरी एंड. महमूद गजनी से स्टार्ट करते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट महमूद ऑफ गजनी, यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है. इट वाज अराउंड इन 1026 महमूद ऑफ गजनी अटैक दिस टेम्पल, प्लंडर्ड, लूटेड, नॉट जस्ट अटैक. सिर्फ डैमेज करना मंशा थोड़ी थी. Somnath temple was one of the richest temple in our Indian history, spiritually be and materially be. And it was plundered 17 times. Then comes उलूग खान. उलूग खान आ जाते हैं आपके यहाँ पर 1299. और अरे ये तो इरेज हो गया. यस, 1299. आप देखोगे ये टाइम पीरियड है when उलूग खान अटैक दिस टेम्पल. Then मुजफ्फर शाह 1395 is the टाइम पीरियड व्हेन ही अटैक्ड. एंड देन औरंगजेब की बात आती है तो 1600 तो टाइम पीरियड था ही जब औरंगजेब इंडिया के सारे मंदिरों को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे, है ना. गुजरात में सोमनाथ मंदिर पाया जाता है. इनिशियल एंशिएंट नाम इसका प्रभास पतन है, विच इज फाउंड इन वेरावल इन गुजरात. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज दियो पतन. इट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स. और कहा जाता है कि इसको चालुक्यन आर्किटेक्चरल स्टाइल में तैयार किया गया है. जैसे कि आप ब्यूटीफुल टेम्पल यहाँ देख रहे हैं, यू कैन सी दी ब्यूटी ऑफ द टेम्पल की मल्टीपल श्राइन्स हैं आसपास. एंड देखेंगे स्टेयर्स, आप देखेंगे दे हैव बीन कार्व्ड सो प्रोफिशिएंटली, बट स्टेयर्स में यू विल सी कि यहाँ पर साइड में कोई रेलिंग नहीं है. अयोध्या टेम्पल में आप देखोगे रेलिंग्स है, राइट. तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है. दीज आर सर्टन फीचर्स.
अब इसका जो फाइनल रिकंस्ट्रक्शन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करवाया था 1951 में, इट वाज फाइनली रिकंस्ट्रक्टेड। सो दिस इज आर सोमनाथ टेम्पल। जब हम बात करते हैं सोमनाथ टेम्पल की, इसकी छोटी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए बात है हमारे एंशंट हिस्ट्री की। वी आर टॉकिंग अबाउट आर एंशंट हिस्ट्री, राइट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आर एंशंट हिस्ट्री, वी एज इंडियंस शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द फैक्ट्स, राइट? जब हम सोमनाथ टेम्पल की बात करते हैं, वी नो दैट दिस सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगास। मैंने आपको ये भी समझाया कि ज्योतिर्लिंग क्या है ना? देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट इज अ पिलग्रिमेज साइट। ये एक पिलग्रिमेज साइट है, ठीक है? अब यहां पर एक पॉइंट और याद रखना है कि इट इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री रिवर्स। इसीलिए यहां पर त्रिवेणी संगम पाया जाता है। वी कैन फाइंड त्रिवेणी संगम ओवर हियर। व्हाट आर द थ्री रिवर्स विच आर फाउंड ओवर हियर? तो यहां पर आप देखोगे वी हैव कपिला रिवर, we have Hiran river and we have river Saraswati. These are the three rivers जिनको हम त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। थ्री रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे ये टेम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है? बहुत ही ब्यूटीफुल है ये टेम्पल। अगर आप देखें 1869 की एक बहुत ही दर्दनाक इमेज है जो कि शो करती है द रूइंस ऑफ द सोमनाथ टेम्पल। नाउ जब हम बात करते हैं सोमनाथ टेम्पल, आई टोल्ड यू दैट इट वाज इनिशियली नोन एज प्रभास पतन। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पे इसका नाम प्रभास पतन लिखा गया है, बट देयर आर प्रूफ्स दैट दिस टेम्पल वाज नोन एज सोमेश्वरा। सोमेश्वरा 9th सेंचुरी में इसको सोमेश्वरा कहा जाता था, वेयर वी कैन सी द गुर्जरा प्रतिहारा किंग, द गुर्जरा प्रतिहारा किंग विच वाज नागाभट्टा वन। प्लीज इसको लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? नाउ इट इज रिकॉर्डेड दैट ही हैड विजिटेड वेरियस तीर्थास इन सौराष्ट्र। गुजरात कॉन्टिनेंट में काफी तीर्थ के प्लेस थे जो उन्होंने विजिट किए थे। वन ऑफ दैट तीर्थ प्लेस वाज सोमनाथ टेम्पल एंड इन द रिकॉर्ड्स इट इज नेम्ड एज सोमेश्वरा। रिकॉर्ड्स में इसका नाम रखा गया है सोमेश्वरा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। आपने रोमिला थापर मैम के बारे में सुना होगा, हिस्टोरियन है, ठीक है? तो वो कहती हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि इस टेम्पल का जो एग्जिस्टेंस है वो हम बोलेंगे कि इट वाज ओनली प्रेजेंट इन 9th सेंचुरी, राइट? नो, इवन वी विल सी दैट द चालुक्य किंग जो कि सोलंकी किंगडम से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग टू द सोलंकी किंगडम, हिज नेम वाज मूल राजा। इट इज सेड दैट मूल राजा पॉसिबली बिल्ट द फर्स्ट टेम्पल। वैसे अननोन है कि सबसे पहले इस ज्योतिर्लिंग के आसपास मंदिर किसने बनाया, इट इज अननोन, स्टिल इट इज अननोन, बट इट इज सेड कि मूल राजा maybe he constructed the temple for the first time, ठीक है? somewhere before 997 century। some historians बोलते हैं उससे भी पहले इस ज्योतिर्लिंग के आसपास मंदिर बन चुका था, ठीक है? बट अभी रिसेंटली तो यही माना जाता है कि सोलंकी किंग, दैट इज व्हाई द टेम्पल आर्किटेक्चर इज चालुक्यन टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो बेस्ड ऑन दैट वी पीपल से, हिस्टोरियंस से दैट द फर्स्ट टेम्पल वाज बिल्ट इन 997 सेंचुरी, मतलब ज्योतिर्लिंग के आसपास जो मंदिर बनाया गया है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिर्लिंग 997 सेंचुरी में आया है। ज्योतिर्लिंग तो टाइम इमोरियल है, इट हैज मैनिफेस्टेड इटसेल्फ, ऐसा कहा जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर 1026 या 25 के आसपास महमूद ऑफ गजनी ने रेड किया इस टेम्पल के ऊपर। 11th सेंचुरी के जो पर्शियन पोएट हैं अल बिरूनी, उन्होंने ये बात अपनी किताब में लिखी है। ही हैज मेंशन्ड दिस इन हिज बुक, okay, because he accompanied when this temple was getting damaged। तो यहां पर आप देखोगे अल बिरूनी बोलते हैं कि महमूद ऑफ गजनी ने इस टेम्पल को किया डिस्ट्रॉय और रेड्स के बाद यहां पर लूट की गई थी। एंड डू यू नो वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई केम अक्रॉस, approximately 30,000 plus civilians, the people like us, came and stood in front of the temple to stop Mahmud of Ghazni from attacking the temple, even the priest and their family members included। I still get goosebumps, मुझे अभी भी goosebumps आ जाते हैं। एंड सबको मारा था महमूद ऑफ गजनी ने। सो दिस शोज कि किस तरीके का रैथ और इनटॉलरेंस रहता है लोगों के अंदर, इन्वेडर्स के अंदर, व्हेन दे वर अटैकिंग द रिच हेरिटेज कल्चरल साइट्स ऑफ इंडिया। 30,000 plus, my heart still sinks when I just imagine वो सीन जब ऐसा हुआ होगा,
कि बच्चे बूढ़े बड़े सब खड़े हैं मंदिर के आगे, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। Okay, so these are the things when we have which we have to keep in our mind when we are studying these temples. जब हम इन मंदिरों की बात करते हैं, हमारे लिए तो देखो ये जस्ट एक पिक्चर है। यू कैन सी अरे टेम्पल इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, इट्स अ पिक्चर। जस्ट गो बैक इन टाइम, एक बार पीछे जाओ। आई विश कि एक टाइम मशीन होती और उस वक्त के इमोशंस जो लोगों में होंगे इन द पिक्चर, इफ यू कैन सी फायर ऑल अराउंड, राइट, लोग खड़े हैं इन प्रोटेक्शन ऑफ देयर टेम्पल एंड दे आर गेटिंग, दे आर अटैक्ड बाय द इन्वेडर्स। एंड एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, 17 बार। सो यू कैन सी कि व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल टर्बुलेंस was going on at that time. So again, Somnath temple, we bow down to all those people who tried to protect the temple, and also our government. We respect our government that they are now on a spree of reconstructing all these beautiful historic spiritually charged temples, because ये मंदिर हमारे भारत की स्पाइन है। Now we are going to move ahead towards the Khajuraho group of temples. यहाँ पर सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, यहाँ पर कई सारे टेम्पल्स हैं। और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पीरियड के दौरान काफ़ी अटैक्स हुए थे। बट उससे पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ टेम्पल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अभी हमने काशी विश्वनाथ टेम्पल पढ़ा, सोमनाथ मंदिर के बारे में पढ़ा, and in all those two temples I have explained to you the historical background. Why did these temples exist? How did they exist? Now same account goes for the Khajuraho group of temples. जब हम खजुराहो टेम्पल्स की बात करते हैं, it is supposedly said that Mahatma Gandhi found these sculptures in Khajuraho temple very disheartening. मतलब they were destructed, they were damaged. मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। वी हैव पिक्चर्स ऑल्सो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आप देखोगे दी स्कल्पचर्स ओवर हियर, यहाँ पर आप देखोगे जितनी भी स्कल्पचर्स हैं दे हैव बीन डिसफिगर्ड। यहाँ शिवलिंग देखने को मिल रहा है, इवन इन द शिवलिंग जो माउंट है शिवलिंग का, दैट हैज बीन डिसफिगर्ड ओवर हियर। ओके, देन आई विल शो यू अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। यहाँ देखोगे स्कल्पचर्स, द एलिफेंट्स, इफ यू कैन सी, यहाँ पर ये these are the areas, these are the samples which have been tried to, these are the places which have been tried to, they have tried to damage them, break them. यहाँ पर आप देखोगे कॉन्टिन्यूटी होती है, एक पैटर्न बन रहा था सुंदर सा और उस बाउंड्री को कॉन्टिन्यूट करना था, बट बीच में किसी ने तोड़ा हुआ है। दीज आर द डिसफिगरिंग ऑफ स्कल्पचर्स ऑल्सो विच कैन बी सीन इन द खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। दीज आर द एक्चुअल इमेजेस। So these images were taken by our very own environment and ecology expert, science and tech expert Vimal sir. उन्होंने ये pictures ली थी, he visited the temples and he specifically clicked the pictures of those sculptures which were disfigured. उन sculptures की pictures ली गई थी जो जिनको sculptures को disfigure किया गया है। तो जब हम बात करते हैं इस टेम्पल की, फेमस खजुराहो टेम्पल्स ऑफ मध्य प्रदेश, दीज आर इन मध्य प्रदेश। यू हैव टू रिमेंबर कि ये हमेशा ना लाइमलाइट में रहते हैं। वाई? बिकॉज अगेन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट का टैग दिया गया है इनको, ठीक है। यू कैन राइट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इनको टैग दिया गया है। एंड बेसिकली ये जो टेम्पल्स हैं यहाँ पर आप देखोगे इरोटिक इमेजेस भी पाई जाती हैं। नाउ इसके पीछे की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, we will understand that. So let's go beyond the erotic sculptures. Erotic sculptures के भी परे जाते हैं, ठीक है, जो कि because they are just a part of 10% of the temple. पूरा टेम्पल यहाँ पर सिर्फ यही इमेजेस नहीं है, it is just a 10% part. It shows the actual nature. देखो humans का जो है ना, we have evolved with time, right? So there are different phases in which we have evolved. There are different parts of a human being, spiritual, material, physical, etc. तो यहाँ पर मैं आपके पास इस टेम्पल की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर आज थोड़ी सी लाइट डालूंगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज प्रेजेंट इन दिस टेम्पल, बिकॉज इवन द डांस फॉर्म्स कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, द स्कल्पचर्स ऑफ दीज रिप्रेजेंटिंग दीज डांस फॉर्म्स कैन ऑल्सो बी फाउंड ओवर हियर। क्यों ऐसा है, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ दिस टेम्पल। इस टेम्पल की क्रिएशन के पीछे की हिस्ट्री समझते हैं, ठीक है। वील अंडरस्टैंड द हिस्ट्री बियॉन्ड द क्रिएशन। कुछ ऐसे लेजेंड्स हैं, देर आर सर्टन लेजेंड्स विच से दैट देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन कॉल्ड हेमवती, ठीक है। बहुत ही सुंदर महिला थी हेमवती। एंड इन्हीं के नाम पर खजुराहो टेम्पल, इन्हीं के वजह से खजुराहो टेम्पल्स आज दे आर इन एग्जिस्टेंस। नाउ वन डे शी वाज बेदिंग इन अ पूल, ठीक है, एक पूल में नहा रही थी। एंड शी वाज बेदिंग इन बनारस में शी वाज बेदिंग।
But when she was bathing, the moon god was witnessing this, and he was swooned by the beauty of Hemvati. Kafi, ऐसे कह सकते हो, he fell in love with the beauty of Hemvati. Okay, so what he did, he proposed Hemvati. ठीक है, they conceived a child also. These are historical legends. Okay, they conceived a child also. That child was known as Chandravarman, obviously because moon god के बेटे थे तो चंद्र नाम आगे आ गया, चंद्रवर्मन. But Hemvati was scared कि what if the society never accepts my child, because obviously sun moon god है proper, there is no nobody would believe. So सब पूछेंगे कि बच्चा कहाँ से आया, nobody would believe me. So everyone will start asking where this child came from and etc. The child may face harassment. ठीक है, so she was so distressed that she cursed the moon god. Okay, अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने श्राप दिया मून गॉड को कि आपके वजह से मेरे स्टेटस और मेरे रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, तो मून गॉड ब्लेस्ड द चाइल्ड एंड ही सेड कि दिस चाइल्ड विल बिकम अ वेरी बिग किंग, नोबडी विल एवर पॉइंट अ फिंगर टुवर्ड्स दिस चाइल्ड, ये बहुत बड़ा महान राजा बनेगा. एंड जस्ट लाइक द प्रोफेसी, द चाइल्ड ग्रू अप to become a very great king of the Chandela dynasty. ठीक है, तो मुझे ना हिस्ट्री क्यों पसंद है, क्योंकि हिस्ट्री की यही बात बहुत बढ़िया है कि स्टोरीज होती है हिस्ट्री में, और मुझे स्टोरीज के पीछे का बैकग्राउंड समझना बहुत अच्छा लगता है. So he became the one of the most famous kings of the Chandela dynasty. And when he became the king, जब वो राजा बने थे, तो हेमवती when pass, see, एक दिन सबको जाना होता है, तो हेमवती also grew old, she passed away, but she asked him to construct the temples that would depict human passions, so that no one else can, blame fingers or point fingers. मतलब आउट ऑफ पैशन द चाइल्ड वॉज बॉर्न, राइट. तो वो चाहती थी कि इस चीज को एक नॉर्मलाइज किया जाए, इसलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा कि एक ह्यूमन पैशन को डिपिक्ट करता हुआ एक आप ऐसा मंदिर कॉम्प्लेक्स बनाओ, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करवाओ. दैट इज वाई देयर आर सर्टेन इरोटिक स्कल्पचर्स आल्सो व्हिच आर फाउंड ओवर हियर. 10% ऑफ द क्रेविंग्स ऑफ द टेम्पल आर डिपिक्टिंग दैट. ठीक है, बट चंद्रवर्मन ऑल्सो वॉज अ लवर ऑफ आर्ट, डांस, म्यूजिक, थिएटर, उनको अच्छा लगता था. चंडेला डायनेस्टी यू कैन से पेट्रोनाइज्ड आर्ट फॉर्म्स. काफी अच्छी बात है ये चंडेला डायनेस्टी की, आर्ट फॉर्म्स को उन्होंने काफी प्रोपगेट किया. सो वी कैन सी भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ऑल दीज डांस फॉर्म्स इन स्कल्पचर फॉर्मेट विच कैन बी सीन ओवर हियर. ठीक है, आज के टाइम में 85 टेम्पल्स हैं. ठीक है, 85 टेम्पल्स 12th सेंचुरी तक एग्जिस्टेंस में थे. बट 13th सेंचुरी में क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत पीरियड स्टार्ट्स एंड इट कैप्चर्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया, एंड बिकॉज ऑफ विच मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड. तो अभी आज के टाइम पे ओनली 22 टेम्पल्स जो सही फॉर्म में है, दे आर रिमेनिंग. ओनली 22 टेम्पल्स आर रिमेनिंग, दे हैव सर्वाइव्ड एंड स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम. ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे, जब हम खजुराहो टेम्पल्स की बात करते हैं, ये खजुराहो वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड खजूर, बिकॉज देर आर मेनी डेट पाम ट्रीज विच आर फाउंड ऑन द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल. दैट इज वाई द नेम इज खजुराहो. खजूर, खजूर मतलब डेट्स. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया? आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया है. चलो, अब इसको फाइनली आगे पढ़ते हैं. बिकॉज इट इज एंड ऑन दी नॉर्थ साइड ऑफ दी ऑफ इंडिया, दैट इज वाई यहाँ पर आप देखोगे नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज प्रेवलेंट ओवर हियर. नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पर काफी फेमस रहता है. नगर स्टाइल में क्या होता है, काशी विश्वनाथ टेम्पल पढ़ा था हमने, सैंक्टम सैंक्टोरम इज जस्ट बिहाइंड, जस्ट बिलो दी elevation, the shikhara of the temple, right? And here in this temple you will find different religious sculptures and deities. Vaishnavism, Shaivism, Jainism, ये किसी एक religion को belong नहीं करता. यहाँ पर Jainism की भी related deities and sculptures हैं. Shaivism, शिवलिंग अभी मैंने आपको दिखाया था, अभी दिखा देती हूँ. If you are unable to see it, I'll just show this. Yes, यहाँ देखोगे आप, this is a शिवलिंग, राइट. सो जैन स्कल्पचर्स भी यहाँ पाए जाते हैं, नारायण की स्कल्पचर्स भी हैं. And this temple was rediscovered. It was, in shackles and ruins because of Delhi Sultanate period. But it was rediscovered by British engineer T.S. Burt. This is important. Okay. Muslim invaders ने जब चंडेला किंगडम गिर गया था, when Chandela kingdom was destroyed, the Muslim invaders came and they looted and they destroyed this temple. Even Ibn Battuta के time period में भी ये temple in many of the writings is mentioned. Al-Biruni also wrote about this temple. I told you na, Mahmud of Ghazni, he used to travel along with the troops, so he mentioned about this temple ki again this temple was also attacked.
तो यहाँ पर खजुराहो टेम्पल्स में 3 क्लासिफिकेशंस हैं, द वेस्टर्न पार्ट, द ईस्टर्न पार्ट एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द टेम्पल। 85 टेम्पल से भी ज्यादा थे यहाँ पर, तो काफी बड़ा एरिया है इस टेम्पल का। So in the western group of temple we find 64 Yogini temple, and this 64 Yogini temple has been asked in PYQ. इस टेम्पल को PYQ में पूछा गया है। कंदारिया महादेव टेम्पल, देवी जगदम्बा टेम्पल, चित्रगुप्त टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, लक्ष्मणा टेम्पल, ऑल दीज टेम्पल्स आर अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ग्रुप ऑफ खजुराहो टेम्पल्स। ईस्टर्न ग्रुप में आप देखोगे आदिनाथ, जैनिज्म से रिलेटेड टेम्पल्स यहाँ पर बने हैं, आदिनाथ टेम्पल, परशवनाथ जैन टेम्पल, ऑल द जैनिज्म रिलेटेड स्कल्पचर्स एंड टेम्पल्स कैन बी फाउंड इन द ईस्टर्न ग्रुप। एंड इन द सर्दर्न ग्रुप यू विल फाइंड द टेम्पल्स रिलेटेड टू नारायण, दूल्हा देव टेम्पल, बीज मंडल टेम्पल, चतुर्भुज फॉर्म लॉर्ड नारायण का है, वो टेम्पल भी यहाँ पर पाया जाता है, where he has 4 hands emanating from the back of his body. Okay, so these are the beautiful Khajuraho temples. आप देखोगे कार्विंग्स को कैसे डिस्ट्रॉय किया गया था। The point here is you don't have to look at the carvings per se कि अरे कार्विंग्स को निहारते हैं, नहीं, आप ये देखो back at that time what was a kind of technology, superior technology which was followed to carve such beautiful sculptures। यानी कि हम पिछड़े हुए नहीं थे, इट इज अ प्रूफ, ये एक प्रूफ है, हम पिछड़े हुए नहीं थे। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टिन्यूड लूट, प्लंडरिंग, इन्वेजन्स, आवर कल्चर वॉज डिस्ट्रॉयड पर्पसफुली। We had so many techniques, technological tools and weapons and everything to build such beautiful temples। इतनी बारीकी से आप देखोगे ना, जिस तरीके से कार्विंग की गई है, दिस इज लुकिंग लाइक एन एलिफेंट, कितना पर्टिकुलर कार्विंग है कि देखकर पता चल रहा है घोड़ा है कि हाथी है ना। These kind of boundaries which have been made, if you can look at this particular image, sculpturing देखो, कारीगरी देखो, और कितनी मेहनत लगी होगी। 85 टेम्पल्स तो 12th सेंचुरी में ही थे, उससे पहले जस्ट इमेजिन कितने टेम्पल्स रहे होंगे। This is what we learn by going back in time and understanding about our temples, है ना। चलिए, now moving on to the next temple और next location। आज तो पूरे भारत का भ्रमण कर ही लेते हैं। स्टार्टिंग विथ दी हम्पी स्टोन चैरियट नाउ। 2 टेम्पल्स बचे हैं, 2 जगह बची हैं जिनको आज हमें कवर करना है, उसके बाद हम रैप अप करेंगे इस सेशन को। आई होप आपको इस सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, राइट। जब हम बात करते हैं हम्पी टेम्पल की, तो कर्नाटका का ये टेम्पल काफी फेमस है। राइट नाउ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेम्पल इज गोइंग ऑन, राइट, बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। जब हम बात करते हैं 2020 की, व्हेन वी टॉक अबाउट 2020, राइट, 2020 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए थे। द ASI took some steps in 2020. The steps were to protect this image that you can see. This is the stone chariot. आप देखोगे ये रथ है, there are wheels, right? Elephants are pulling this. सोचो कितनी बारीकी से ये चीजें स्कल्प्ट की गई हैं। It takes a lot amount of time to build such things with such precision, such beauty. And नीचे भी अगर if you see in the image, there are patterns which have been created, such beauty, right? So to protect this stone chariot, इस पत्थर के रथ को प्रोटेक्ट करने के लिए, because it is very old and it is a part of the Vittala temple, the Vittala temple complex, और ये हम्पी साइट में है। हम्पी साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब भी मिला है। Now, the ASI is right now trying to not just protect the stone chariot but also protect it from getting further degraded. जब हम बात करते हैं हम्पी चैरियट की, when we talk about the हम्पी चैरियट, ये जो आप रथ देख रहे हो, this is one of the most famous stone chariots of Karnataka. Other chariots are in Konark, which is in Odisha, okay, and in Mahabalipuram. महाबलीपुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। One is in Karnataka. So these are the 3 very famous stone chariots which you can find. And it was built in 16th century में बना था। उस वक्त विजयनगर एम्पायर के जो राजा थे उनका नाम था कृष्ण देव राया, उनके ऑर्डर्स पे इसको बनाया गया था। 14 से 17 सेंचुरी के बीच में विजयनगर एम्पायर वॉज रूलिंग एंड इट वॉज एट इट्स पीक। नाउ ये जो श्राइन है ये किसको डेडिकेटेड है? इट इज डेडिकेटेड टू द वाहना ऑफ नारायण विच इज लॉर्ड गरुड़ा, द व्हीकल ऑफ लॉर्ड विष्णु। विट्ठला टेम्पल है, विट्ठल तो नारायण है, राइट। नारायण के चैरियट को, उनके व्हीकल को, ये जो चैरियट है, ये स्टोन चैरियट है, रथ है, इसको डेडिकेट किया गया है।
यहाँ पर हम्पी में काफी मंदिर मिलेंगे. वी कैन फाइंड ओवर हियर दी विट्ठला टेम्पल. यहाँ पर विट्ठल टेम्पल भी देखने को आपको मिलता है. ठीक है, विट्ठल टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड नारायण. 15th सेंचुरी में इस मंदिर को बनाया गया एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ देव राया टू विच वॉज अ पार्ट ऑफ द विजयनगर एम्पायर. Okay, and it is dedicated to Lord Vithala, which is नारायण. तो वैष्णविज्म यहाँ पर आता है. ठीक है, इट ही इज कंसिडर्ड एज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. आप देखो विष्णु, देखोगे कमर पे हाथ रख के विठल खड़े हैं. महाराष्ट्र में इनको काफी पूजा जाता है. एंड obviously because it is in Karnataka, the architectural style would be Dravida architectural style, right? हम्पी की जब हम बात करते हैं, when we talk about हम्पी, ठीक है, it is basically a remnant. It is a remnant of the Vijayanagar Empire, the ruins of Vijayanagar Empire, which was located in the Tungabhadra basin in Karnataka. अब यहाँ पर ये डैमेज हुआ क्यों? Why this Hampi temple was damaged? Because there was a very famous battle which is known as Battle of Talikota. ये Battle of Talikota हुआ था 1565 CE में. Okay, and this Battle of Talikota, basically it was a confrontation between the Deccan kingdoms or the Deccan kings, ठीक है, against the versus the Muslim sultans of Bijapur, Ahmednagar, Golconda. कर्नाटका रीजन में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा के जो मुस्लिम सुल्तान्स थे, they were indulged in a face off with the Deccan kings of Vijayanagar Empire, and in that fight this temple got hit. इस फाइट के चलते इस टेम्पल पे अटैक किया गया. ओके, सो दैट इज वाई दिस टेम्पल इज रियली फेमस. अब आपको पता है इस टेम्पल को 1986 में यूनेस्को इन 1986 गेव दिस टेम्पल द वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस. इट इज ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे टेम्पल्स हैं, इतने सारे कॉम्प्लेक्स स्कल्पचर्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इट इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए आप लोगों को अबाउट दी हम्पी टेम्पल. नाउ मूविंग ऑन टू द ज्ञान टेम्पल, ज्ञान का मंदिर. अब ज्ञान का मंदिर कौन सा है जहां पर हम जाने वाले हैं? चलिए लेकर चलती हूं आपको. ये है हमारा ज्ञान का मंदिर, नालंदा यूनिवर्सिटी, the ancient university where people from across the world used to come and learn different forms of art, different forms of learnings, Vedas, scriptures, ancient knowledge. नालंदा यूनिवर्सिटी को ज्ञान की यूनिवर्सिटी कहा जाता है, ज्ञान की जमीन कहा जाता था. अपने आप में नालंदा यूनिवर्सिटी हमारा बिल्कुल आप बोल सकते हो नॉलेज का, ज्ञान का जड़ था. कहा जाता है गीता में, भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं जहां ज्ञान है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता. जैसे कि आज आपको 5 मंदिरों का ज्ञान हुआ है, अब इन 5 मंदिरों के ज्ञान के बाद आप अंधकार में नहीं रहेंगे. यू नो एवरीथिंग अबाउट दीज 5 स्पिरिचुअली चार्ज्ड प्लेसेस, राइट? जहां ज्ञान है वहां डर नहीं होता, जहां ज्ञान है वहां घबराहट नहीं होती, क्योंकि ज्ञान जो है वो एक फायर है. इट लाइट्स अप आवर सोल, इट इग्नाइट्स आवर सोल, इट हेल्प्स अस टू फाइंड आवर पर्पस. And this was one such place, Nalanda University, illustrious institution of ancient India. इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो सिचुएटेड है नालंदा यूनिवर्सिटी की, जब हम बात करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यस, व्हेन वी टॉक अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट, चलिए ऐसा करते हैं, अलग से एक स्क्रीन पर लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी समझ आए कि क्या हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ. तो जब हम बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की, हमको पता है कि यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैब्लिश्ड है? बिहार में स्टैब्लिश थी, बिहार, इंडिया. 427 टू 428 के बीच में इसको स्टैब्लिश किया गया था. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लेगेसी, इट कंटिन्यूड टिल 1198 AD तक कंटिन्यूड रही थी ये यूनिवर्सिटी. एंड यहाँ पर चाहे आप बुद्धिस्ट स्टडीज कह लीजिए या चाहे आप हिंदू स्क्रिप्चर्स की स्टडी कह लीजिए, ठीक है, देवर या और जैन लर्निंग सेंटर, ये यहाँ पर सिचुएटेड था. एवरीथिंग अबाउट मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, और साइंस और पॉलिटिक्स, एंड इवन इट इज सेड मिलिट्री स्ट्रैटेजी, fighting, warfare, everything was taught over here. And that is why it was very, very possible
Why? And we know why. The reason is very clear, the intent is very clear, why the Muslim invaders attacked this university. जहां पर ज्ञान का भरपूर नॉलेज भारत में, विश्व के सभी लोग, चाइनीज हो या बुद्धिस्ट हो, सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस ऑल द नेशंस, ऑल द रिलीजन, पीपल आर कमिंग हियर टू लर्न वॉरफेयर, मिलिट्री स्किल्स, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, पॉलिटिक्स, etc. And the teachers are well learned over here, well adept in Vedic scriptures, etc. So you can imagine why it was the target of the invaders. क्यों यहाँ पर टारगेट किया इन्वेडर्स ने. बात आती है कि किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया. सो इट वाज क्रिएटेड थ्रू ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, द गुप्ता डायनेस्टी. गुप्ता डायनेस्टी, इट इज क्रेडिटेड टू कुमार गुप्ता वन. ऐसा कहा जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी में कुमार गुप्त वन ने इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश कराया था. एंड वाई इट वॉज फेमस? बिकॉज गोल्डन पीरियड था गुप्ता एज. कॉइन एज से लेकर, मेडिसिन से लेकर, मिलिट्री स्किल्स, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, चेस, मैथमेटिक्स, साइंस, एवरीथिंग डेवलप्ड ड्यूरिंग द एंड फ्लरिश ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, राइट? तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है. बट वॉट वर द अटैक्स विच वर डन ऑन नालंदा यूनिवर्सिटी? कौन कौन से अटैक्स इस यूनिवर्सिटी पे किए गए वो समझना जरूरी है. The first attack was done between the period 455 AD to 470. एक सेंट्रल एशियन ट्राइब थी. देयर वाज अ सेंट्रल एशियन ट्राइबल ग्रुप which was known as the Hunas, which attacked, invaded the Nalanda University. The Hunas, what they did, they looted the Nalanda University. और उस वक्त राजा कौन थे? स्कंद गुप्त राजा थे. ठीक है. सो यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी में एक बहुत फेमस लाइब्रेरी थी जिसको जला दिया गया. आई हैव द इमेज ऑल्सो. लाइब्रेरी की इमेज तो नहीं है मेरे पास, but yes, there was a very famous library. It is said when it got destructed, we were devoid of knowledge for a long period of time. सारे स्क्रिप्चर्स, सारे मिस्टिकल, ओकल्ट, साइंस, मैथ्स, सब चीज़ों से रिलेटेड जो रिसर्च वर्क किया था सेजेस ने, सेंट्स ने, वो सब उस लाइब्रेरी में स्टोर था. एवरीथिंग वॉज बर्न्ड डाउन टू एशेस. Okay, then the second attack was inspired by the Gaudas Rajvansh. आप देखोगे जब Gaudas राजवंश जो थे, पॉलिटिकल टेंशन हुआ इनका एम्परर हर्षवर्धन के साथ. हर्षवर्धन के साथ, ठीक है, वर्सेस. सो द अटैक वॉज मोटिवेटेड बाय पॉलिटिकल रीजंस. यहाँ पर पॉलिटिकल रीजंस थे. बिकॉज ऑफ द राइवलरी बिटवीन दीज टू किंगडम्स, दिस अटैक टुक प्लेस. एंड अगेन the knowledge was attacked, not the place. knowledge पर अटैक किया गया. and the third attack was by बख्तियार खिलजी. खिलजी डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत पीरियड. आप देखोगे दिल्ली सल्तनत पीरियड में तो काफी टेम्पल्स वर अटैक्ड, इन्वेडेड, लूटेड, प्लंडर्ड एंड डैमेज्ड. ओके, so these were the three attacks which destroyed the नालंदा यूनिवर्सिटी to the very core. और कहा जाता है कि इसके बाद ना इस यूनिवर्सिटी को रिस्टोर करने में काफी टाइम लगा था. ठीक है. There are various government initiatives which have been since then initiated to in the recent times to restore the knowledge of Nalanda University. काफी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं. फॉर एग्जाम्पल राजगीर हिल्स, अगर आप देखो बिहार में राजगीर हिल्स हैं, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि वहां पर 450 एकर्स ऑफ लैंड दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा टू रिकंस्ट्रक्ट एंड रीबिल्ड द लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. पुराने स्क्रिप्चर्स को निकाला जा रहा है, वॉट एवर स्क्रिप्चर्स आर लेफ्ट. प्लस देर आर नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट ऑल्सो. 2010 में दिस एक्ट वॉज पास्ड to re-establish and re-manage the Nalanda University, restore. Plus, we are also taking international support from the East Asia Summit to restore the knowledge and learning of Nalanda University. These are several steps which are taken in this direction to again restore the earlier ancient status of Nalanda University. ये जो अटैक्स आप देखते हो ना, all these attacks, when you look at these attacks, one question should be, you can say one question should arise in your mind. Why were these attacks done at the first place? क्यों किया गया? पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे. You will give me this answer in the comment section. Why do you think these attacks were planned? Secondly, why are we now again reconstructing these places? This is the second question that I'm asking you. You have to think about it. आपको यहाँ पर स्टिमुलेशन लाना है दिमाग में, है ना, कि अटैक्स हुए पर क्यों हुए, क्या पर्पस था. इन यूनिवर्सिटीज, इतनी ब्यूटीफुल रिच यूनिवर्सिटीज को मैनेज किया जाता, अटैक क्यों किया गया. सेकंड, why now they are being restored, क्यों रिस्टोर किया जा रहा है. what are the reasons that you think that these universities, these places, these temples are getting restored. And third,
what will be the spiritual and material impact on India when these places are restored? ये थर्ड क्वेश्चन है मेरा. स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और मटीरियल, क्या इम्पैक्ट असर पड़ेगा अगर इन जगहों को रिस्टोर किया जा रहा है ऑन इंडिया? दीज आर द थ्री थिंग्स दैट यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन. क्योंकि अगर आज आप मुझे आंसर करोगे ना, तो आई वुड अंडरस्टैंड कि यू गाइज आर नॉट जस्ट लिसनिंग, राइटिंग, क्रैमिंग, यू आर एक्चुअली थिंकिंग, you are actually, you have intent to, bring India to another stage of glory. I would think, I would finally be assured कि जितने भी यूपीसी एस्पिरेंट्स इस लेक्चर को आज देख रहे हैं वो कम से कम एनालिटिकल है माइंडसेट से. ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. मुझे ये भी बताना आपको कैसा लगा आज का सेशन. आपको लगता है ऐसे और सेशंस मुझे करने चाहिए ऑन आर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल पास्ट? इफ यू रियली एंजॉयड दिस सेशन ना, डू लेट मी नो. क्या लगता है आपको ऐसे और सेशंस के साथ मुझे आना चाहिए इस चैनल पर? डू लेट मी नो. ओके, कमेंट सेक्शन में आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई एवरीवन. थैंक यू सो मच.